Krantikari Jai Bhim, and warmly welcome Mr. Sanjay Aute ji. Thank you so much for joining us. मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र में संजय आउटे जी को सभी लोग पहचानते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है. ही वॉज द ग्रेट जर्नलिस्ट, एक एडिटर, ऑथर. आप अगर जस्ट अमेजोन पे अगर गूगल करोगे तो आपको उनकी किताबों के नाम में आपको पता चलेगी. गेम्स ऑफ थ्रोन, वी द चेंज, मीडिया वॉच, बराक ओबामा, और बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी है. स्पेशली अम्बेडकराइट कल्चर के बारे में वो काफी डीपली रेडिकली थॉट्स प्रेजेंट करते हैं, और जो उनको कहना चाहिए वो अपना पक्ष रखते हैं. एंड राइट नाउ ही इज वर्किंग फॉर द दिव्य मराठी स्टेट एडिटर, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ साम टीवी आल्सो. आपने उनके बहुत से प्रोग्राम टीवी पे लाइव देखे होंगे, बहुत से डिबेट में उन्होंने अच्छी अपनी बातें रखी है. सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस. एक्चुअली उनके कुछ रिलेटिव्स बीमार होने के कारण भी वो अपने पास साथ जुड़ चुके हैं. सो रियली हैट्स ऑफ यू सर, एंड थैंक यू सो मच. ये बताता है कि आप मूवमेंट के प्रति आपका दायित्व कितना बड़ा है. और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मैं सभी दुनिया के सभी अम्बेडकराइट्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ. ओवर टू यू संजय जी. Yes, thank you, Dr. Anil Bankar. Am I audible? Yes, you are. Wonderful. I'm really very happy to be here. And as Dr. Anil Bankar rightly told, basically, I am from the movement. I'm an activist. Yes, I'm editor, I'm journalist, I'm a writer, I'm author. But basically, I am an activist. I'm Ambedkarite. And I think that Jai Bhim is a success password of new era. So I'm really happy to be here as you all are working in this direction, which is very necessary, essential in recent time. Basically, it is tough time, not only due to Corona. Basically, Corona is there, and due to Corona, life is difficult. But not only Corona, but there are so many things that could tell you the time is very difficult for us. It is challenging time, but so also I think this is a challenge, and in this challenging time, we have to go together hand in hand. So though social distancing is key word for Corona, but basically we should go together hand in hand. And I think so. This is a very much needed program, essential program. What you're doing, and basically this is international mission. I think Dr. Ambedkar is basically global leader, and so what you are doing is definitely great thing. So Jai Bhim to each and every person who is listening me here. Actually, Dr. Anil Bankar, why I am here? Because as I told you, I told Sachin also, Sachin Taide, basically I think we should communicate each other in the moment, and we should tell about Baba Saheb, about Mahatma Phule, because the problem is that today's time is nothing but the great challenge that our major persons like Dr. Ambedkar and Mahatma Phule are getting hijacked by other movements or other ideologies. I tell you, basically nowadays RSS and BJP are talking about Baba Saheb Ambedkar and Mahatma Phule, but I think what did the RSS and its mouthpiece think of Ambedkar and his work while he was alive? Remember when in 1949 and 50, when Baba Saheb was law minister in the government of India and was both finalizing Indian constitution as well as advocating the reform of Hindu personal laws so as to give greater rights to women. Notably, the RSS disapproved all the efforts. The organizers issue for November 30, 1949 carried an editorial on the constitution whose final draft had just been presented to the Constituent Assembly by Ambedkar. The first thing about the new constitution of Bharat, wrote the RSS mouthpiece,
that there is nothing Bharatiya about it. There is no trace of ancient Bharatiya constitutional laws, institutions, nomenclature, phraseology in it. There was organizer complaint, no mention of the unique constitutional development in ancient Bharat, and that is Manu. They told that, Dr. Bankar, remember one thing, that RSS mouthpiece, organizer and Panchajanya in 1949 and 50, they were writing about Dr. Ambedkar and Constitution, that Dr. Ambedkar is not architect of Constitution. There is only one Constitution, and that is Manusmriti, and there is only one architect of Constitution, and that is Maharishi Manu. They were talking like that. But now they're talking in different language. I'm just telling you because we should know what is our ideology is. And so I think if we should tell to new generations about our Dr. Babasaheb Ambedkar, Mahatma Phule, what they did, what is their ideology. And so I think this program, as it is international mission, is very much needed. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या है बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, बाकी सब चीजें हैं, इन लोगों को हम किसी एक ही दायरे में बंदिस्त करते हैं। ये बंदिस्त करना जो है, ये बहुत ही गलत चीज है। और हम क्या करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसके बारे में एक आपको मैं इंसिडेंस बताता, स्टोरी बताता हूँ जो मैंने मेरी किताब में भी लिखी है। मेरा एक जो मेरे मित्र है, जो प्राध्यापक है, लेडी है, वो प्राध्यापक है, तो उसके बहुत सालों बाद उसका व्हाट्सएप पर मुझे एक मैसेज आया। और आपको पता है डॉक्टर अनिल बनकर के, जैसे कि कॉलेज के कोई लड़की का अगर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार उस वक्त जो क्या दिन थे, तो वो व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया और उसने मुझे मैसेज पर हाय कहा, तो मुझे बहुत अचरज हुआ। और मैंने उसने मुझे पूछा कि यार संजय, मुझे भूल गए ना आप? मुझे और अच्छा लगा। फिर उसका हमारा संवाद जो शुरू हुआ, वो संवाद कुछ इस तरह था। वो मुझे बोली कि यार तेरा व्हाट्सएप पर स्टेटस क्या है? तो मैंने पूछा क्या है, मतलब मुझे नहीं पता चला। तो मेरा व्हाट्सएप पर उस वक्त स्टेटस था, मैं किसी अम्बेडकर जयंती प्रोग्राम में कुछ बोल रहा था और जो नैपकिन होता है, जो जय भीम लिखा हुआ उस पर, तो ऐसा कुछ था वहां, जय भीम लिखा था, पीछे भी जय भीम लिखा था और मैं वहां स्पीच दे रहा हूँ, ऐसा कुछ था वहां। So she asked me, what is that status? I said, yes, that is the status because I was talking about Dr. Babasaheb Ambedkar and there was Jai Bhim written on that banner. So she asked me, so अच्छा, so you are from Jai Bhim community? तो आप जय भीम कम्युनिटी से हो क्या? तो मैंने उससे पूछा कि आप कौन सी कम्युनिटी से हैं? तो बोले मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो मैंने बोला जय भीम का किसी कास्ट के साथ क्या लेना देना है? तो बोले नहीं बिल्कुल, जय भीम तो एक कम्युनिटी है, मैं ब्राह्मण हूँ। तो वो उसे बोलने के बाद मैंने उसे बताया कि आप खुद को ब्राह्मण कहती है, इसलिए मैं बताता हूँ कि तमाम ब्राह्मणों को परशुराम का, सावरकर या हेडगेवार का जो फोटो है ना, वो फोटो छोड़ देना चाहिए और सावित्री और ज्योतिबा और बाबा साहब का फोटो लगाना चाहिए आपके दीवार पर। वो बोले कुछ भी यार। तो मैंने उसे पूछा, एक उदाहरण देता हूँ। मेरा मानना यह है कि ज्योतिबा फुले ने असल में दलित ओबीसी के लिए नहीं, तो सिर्फ बल्कि ब्राह्मणों के लिए काम। तो मुझे बोले यार कुछ भी बोल रहा है तू, ऐसा कैसा हो सकता है, ये ज्यादा हो रहा है। तो मैंने पूछा उसे कि तुम्हें ज्योतिराव फुले के बारे में क्या कहना है आपका, आपको क्या पता है ज्योतिराव फुले के बारे में? तो बोले कि ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने लड़कियों की पाठशाला शुरू की उन्होंने, ये मुझे पता है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मुझे एक बता दो कि लड़कियों की जो पाठशाला शुरू की, तो उसमें जो लड़कियां थी वो कौन सी जाति की थी? तो बोले ज्यादा तो ब्राह्मण थी। ठीक है, और क्या काम किया? तो बोले कि वो कुंवारी माता और बाल विधवा जिन्हें फंसाया गया था या जिन्होंने स्वेच्छा से किसी के साथ शरीर संबंध रखे, तो वे मेरे पास आकर बच्चे को जन्म देकर जाए और बच्चा यही छोड़ के चले जाए, ऐसा फुले दंपति ने वहां बोर्ड पर लिखा था। मैंने बोला बराबर। अधिकांश औरतें तो डिलीवरी करके गई या बच्चे छोड़ के गई, वो कौन सी जाति के थे? तो बोली ब्राह्मण है। अच्छा, और क्या किया उन्होंने? तो बोले नाइयों का जो बार्बर्स होते हैं, तो उनकी हड़ताल, बराबर है। तो वो किसके लिए किया? तो बोले जो विधवाओं का जो केश वपन होता था, तो वो केश वपन ना हो, इसलिए उन्होंने नाइयों की हड़ताल की। तो मैंने बोला एक बात मुझे बता दो, केश वपन कौन सी कम्युनिटी में होता था? तो बोली केश वपन तो ब्राह्मण कम्युनिटी में होता था और खास करके कोकणस्थ ब्राह्मण। आप लोगों ने काकस्पर्श फिल्म देखी होगी,
तो कोकणस्थ ब्राह्मण जो है वहाँ ये प्रथा ज्यादातर थी। तो मैंने पूछा कि कोकणस्थ ब्राह्मण औरतों के लिए उन्होंने ओबीसी नाइयों की हड़ताल करवा दी। तो बोले हाँ बराबर है, और आपको क्या पता है? तो बोले महात्मा फुले ने दत्तक लिया एक लड़के को। मैंने बोला बराबर है, किस किस बच्चे को दत्तक लिया? तो बोली यशवंत को। मैंने बोला यशवंत कौन था? तो एक ब्राह्मण विधवा का बेटा। तो मैंने पूछा ये सब आपने देखने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ उनकी बायोग्राफी देखने के बाद ये मुझे बता दो कि इसमें जो भी काम किया है उन्होंने किसके लिए किया? तो फिर वो मुझे बोली कि यार मैंने इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था। मैंने बोला यही बात है, ये महापुरुष जो होते हैं किसी जाति के लिए नहीं काम करते। मतलब जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो है समाज स्वास्थ्य करके एक नियतकालिक निकालता था, पेरियोडिकल था समाज स्वास्थ्य। रघुनाथ धोंडो कर्वे नाम के एक बहुत बहुत बड़े थिंकर थे, धोंडो केशव कर्वे के बेटे थे वो। रघुनाथ धोंडो कर्वे ने समाज स्वास्थ्य करके एक मैगजीन निकाली थी, और वो जो मैगजीन है वो मैगजीन क्या करती थी? वो मैगजीन जो सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ काम करती थी, सेक्स एजुकेशन पर लिखती थी। तो उस वक्त ये सेक्स एजुकेशन के बारे में इतना ओपनली खुलकर बोलना, लिखना ये मना था, मंजूर नहीं था किसी को भी, लेकिन वो लिख रहे थे। तो वो लिखने के बाद वो सब जब आ रहा था, तब लोग बोले कि यार ये हमारे संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है। तो उनके खिलाफ लोग कोर्ट में गए। तो जब कोर्ट में गए, तो कोर्ट में जाने के बाद उनका जो भी कुछ वकील पत्र जो है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया। और जब वकील पत्र पर उनका नाम था, अशिल का नाम होता है ना, तो अशिल का नाम था रघुनाथ धोंडो कर्वे, और एड्रेस था भटवाड़ी, मुंबई। बाबा साहब के किसी अनुयायी ने बाबा साहब को पूछा, बताया कि बाबा साहब ये तो जो लोग है भटवाड़ी के हैं, रघुनाथ धोंडो कर्वे, तो इनका आपने वकील पत्र लिया। बाबा साहब बोले वो भटवाड़ी से है, भट है या कुछ है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मुद्दा यह है कि जिस वैल्यू के लिए वो लड़ रहे हैं मैं उनके साथ। और ये बात बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि जब मनुस्मृति का दहन हुआ, तो वो दहन का जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव रखने वाले सहस्त्रबुद्धे थे। जब पर्वती मंदिर में जब ये आंदोलन हुआ, तो वहां एस.एम. जोशी और नागा घोरे बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। मुझे लगता है कि इस ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर को देखना ये बहुत ही जरूरी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ब्राजील में रहने वाली एक मेरी दोस्त है, वो एक बार मुझे मिली, मैं जब ब्राजील गया था। तो शी टोल्ड मी कि देयर वाज अ फिल्म फेस्टिवल इन ब्राजील, एंड शी हैज वॉच्ड अ फिल्म ऑन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। आपको पता है कि जब्बार पटेल की फिल्म थी बाबा साहेब अम्बेडकर, तो वो फिल्म उसने देखी। एंड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म शी वाज सो इम्प्रेस्ड, बिकॉज़ तब तक उसे, क्योंकि वो ब्राजील की है लेकिन ब्राजीलियन ही है, मतलब वो मराठी नहीं है या इंडियन भी नहीं है। तो उसे तब तक उसे पता ही नहीं था कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या बात है, क्या चीज है। तो उसने देखा वो फिल्म, और वो फिल्म देखने के बाद वो मिली जब्बार पटेल को, और जब्बार पटेल जी से बोली कि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, और आपका जो क्रिएशन है, आपने जिस ढंग से इमेजिन किया है ये एक महात्मा महापुरुष, ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि ऐसे महापुरुष को इमेजिन करना, तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था भारत के बारे में, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो तो सिर्फ आर्ट लिटरेचर वाली औरत थी। तो वो देखने के बाद वो बोली कि क्या इमेजिनेशन है आपका? तो जब्बार पटेल बोले ये इमेजिनेशन नहीं है, इस नाम का, इस पर्सनालिटी का, ये सब ऐसा एक आदमी, एक महापुरुष हमारे यहाँ पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और उसने ये सब किया। तो बोले कि ये ऐसा सचमुच कहाँ कहीं हुआ है? तो उसका सेंटेंस था, ये मैं आज बता रहा हूँ कि ये एकमात्र एग्जाम्पल है दुनिया में, इट इज द ओनली एग्जाम्पल कि ये एक आदमी जो अपनी एक उम्र में एक कॉन्स्टिट्यूशन चलाता है मनुस्मृति नाम की, और उसी जिंदगी में दूसरी संविधान दुनिया को देता है। उन्हें पूरे 65 साल में बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति नाम की एक कॉन्स्टिट्यूशन चला दी, बता दी कि ये नहीं हो सकती कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान, ये हमें दे दी। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है कि जनरेशन्स उस पर काम करती है। मतलब कोई तो होता है कि एक सपना देखता है, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन उस पर काम करती है। एक ही आदमी ने उसकी एक ही उम्र में, एक ही जिंदगी में एक सपना देखा और वो सपना पूरा किया, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर को इस ढंग से, इस नजरिए से देखना चाहिए।
बाबा साहब ने जब मुकनायक का आरंभ किया तब 1920 में एक संपादकीय में उन्होंने गांधी जी से सीधे ही कहा, अफ्रीका के किसी होटल में प्रवेश ना मिलने के कारण आपको इतनी तकलीफ हुई और यहाँ मेरे समाज के वही जानवरों से बदतर जी रहे हैं और आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। भारत का जाति वास्तव केवल अंबेडकर के कारण गांधी जी को समझ में आया। तब तक ये जाति वास्तव क्या है ये बिल्कुल गांधी जी को पता ही नहीं था। एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि नेहरू जी के लेटर्स टू इंदिरा इज वेरी फेमस बुक। इंदिरा को उन्होंने जो खत लिखे हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध किताब है वो। मैंने शुरू में इस पुस्तक का ये बात है आपको कि उसी में से एक पत्र में नेहरू छोटी इंदिरा को क्या लिखते हैं पता है आपको? पहले अपने देश में जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत थी, लेकिन अब ये काफी शिथिल हो चली है। यह पत्र उसी वर्ष में लिखा है। देखो, नेहरू जी लिखते हैं इंदिरा गांधी को कि अपने देश में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत थी, लेकिन अब ये जाति व्यवस्था शिथिल हो गई है। ये उस साल में, उस वर्ष में नेहरू ने लिखा है कि जिस वर्ष में बाबा साहेब 14 का आंदोलन कर, मतलब जाति व्यवस्था को लेकर नेहरू की समझ कितनी पर्याप्त थी, उनके अनुभव विश्व का दायरा कितना सीमित था, इस बात का यह प्रमाण है। बाबा साहेब के मिलने के उपरांत ही नेहरू की भारत की खोज पूरी हो गई। तो मुझे लगता है कि जो बाबा साहेब ने किया, मतलब मैं हमेशा यहाँ महाराष्ट्र में जब बोलता हूँ तब मैं मराठी में लोगों को समझाता हूँ और मैं बिल्कुल यही मराठी में बोलने वाला हूँ क्योंकि ये बात समझनी चाहिए। बऱ्याच लोकांना असं वाटतं की जातीच्या अनुषंगाने आपण जेव्हा सगळ्या गोष्टी करत असतो आणि मग काय होतं की शिवाजी महाराज असं म्हटलं की त्यांची एक जात, महात्मा फुले असं म्हटलं की त्यांची एक जात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असं म्हटलं की त्यांची एक जात, अशा प्रकारची मांडणी करायची आपल्याला सवय लागली आहे। पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की हे लक्षात घेतलं पाहिजे की जेव्हा मनुस्मृतीचं दहन झालं, महाडचा सत्याग्रह झाला 1927 मध्ये, तेव्हा त्या सत्याग्रहामध्ये एक घोषणा की जय शिवाजी जय जिजाऊ अशी होती आणि बाबासाहेब असं म्हणाले की मी सत्याग्रह अन्यत्र पण करू शकलो असतो, पण मी हा सत्याग्रह इथंच करतोय कारण ही रयतेच्या राजाची भूमी आहे, ही छत्रपती शिवरायांची भूमी आहे। हा सत्याग्रह त्यांनी केला आणि मग आमचा शाहीर असं म्हणतो, कोणच राजे इथे गाजले या कोकण पुण्यभूमीवर, एक त्या रायगडावर एक चवदार थळ्यावर। शिवबा और ज्योतिबा, इन दोनों में क्या है देखो, मतलब शिवबा, ज्योतिबा, बाबा। आणि हे पण लक्षात घ्या की जेव्हा शिवाजी महाराजांची समाधी आहे, ती समाधी शोधून कोणी काढली? रायगडावरची समाधी शोधून कोणी काढली? ती समाधी शोधली महात्मा फुल्यांनी, शिवाजीचा पवाडा गायला महात्मा फुल्यांनी। शिवबा, बाबा, ज्योतिबा, इन तीनों को लेकर अगर हम आगे गए तो ही कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि शिवबा, ज्योतिबा, बाबा, इन तीनों को लेकर हमें आगे जाना चाहिए और हमने ये सोचना चाहिए कि हमारी जो लड़ाई है, बहुत बार क्या होता है डॉक्टर बनकर, मैं आपको ये बिल्कुल, आप इंटरनेशनल मिशन के लिए काम कर रहे हैं इसलिए मैं बिल्कुल बता रहा हूं, क्योंकि वी शुड हैव दिस ग्लोबल अप्रोच, लोकल टू ग्लोबल। you can act locally but you should think globally, your approach should be global। और ग्लोबल अप्रोच क्या होता है कि ग्लोबल अप्रोच में बहुत बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हम अकेले रखते हैं। ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अकेले रखे तो उनका हाईजैक करना, उनका अपहरण करना बाकी लोगों के लिए बहुत ही सीधा हो जाता है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि ये शिवबा, ज्योतिबा, बाबा, इन तीनों को लेकर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि आज क्या हुआ है, आज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का अपहरण करने का ये लोग सोच रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर का अपहरण हो, और जैसे मैंने पहले बताया, ये लोग बोलते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी का संघर्ष था। अरे गांधी जी का और बाबा साहब का संघर्ष था ही, नेहरू और गांधी अंबेडकर का संघर्ष था ही संघर्ष, लेकिन वो तीनों भी काम कर रहे थे। They were active in political process. They were active in drafting of constitution. They were active in freedom movement. They were active in social reform. तो उनका संघर्ष होगा ही, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं उनका संघर्ष था, वो लोग तब क्या कर रहे थे? मतलब बाबा साहब had to resign from Nehru's cabinet. That is right. And Nehru is responsible for that. That is also right. But whenever Baba Saheb was trying for Hindu code bill, what RSS was doing? वहां आरएसएस वाले एजुटेशन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे बाहर,
संसद के बाहर हिंदू कोड बिल के खिलाफ। जो रेफरेंस मैंने पहले दिया फ्रॉम ऑर्गेनाइजर in 1949 and 50, what organizer has written in its editorial, what Golwalkar Guruji was speaking, वो लोग ये बता रहे थे कि इस जाति का जो आदमी है वो राज्य घटना कभी लिख नहीं सकता। वो लोग उपरोक्त से बोल रहे थे। महर्षि अंबेडकर और ये ऋषि नेहरू दोनों मिलकर हमारी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है मनुस्मृति को बदल रहे हैं। दे ट्राइंग टू चेंज आवर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज मनुस्मृति। इस जाति के आदमी को ये लिखने का अधिकार नहीं है, ऐसा बोला जा रहा था। और इन लोगों ने संसद में आकर और संसद के बाहर और दिल्ली में कई सारे आंदोलन किए बाबा साहब के खिलाफ। वो लोग आज बोल रहे हैं कि बाबा साहब हमारे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि स्टेट लेवल पर हमने ये सोचना चाहिए कि बेसिकली हमें शिवा ज्योतिबा बाबा इन तीनों को लेकर आगे जाना चाहिए। और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमें गांधी नेहरू अंबेडकर को भी जोड़ना चाहिए। We should connect Gandhi, Nehru and Ambedkar together because Dr. Baba Saheb Ambedkar is architect of constitution. महात्मा गांधी इस राष्ट्रपिता एंड नेहरू ने जो मॉडर्न इंडिया है, आधुनिक भारत है, उसका निर्माण किया। एक बात है, अगर गांधी नेहरू अंबेडकर को आप तीनों को इकट्ठा करोगे तो इन तीनों को इनका हाईजैक करना, इनका अपहरण करना आपकी विरोधी आइडियोलॉजी के लिए इतना इजी साबित नहीं होगा। मुझे लगता है कि एज ए पॉलिटिकल प्रोसेस वी शुड स्टडी गांधी। जब गांधी जी के बारे में हम सोचते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी नेहरू अंबेडकर को इकट्ठा करना ये किस लिए जरूरी है। आप देखो, मतलब मुझे ये बातें इसलिए कहनी है क्योंकि मैं कुछ अलग बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बातें हो नहीं सकती और इस पर चर्चा नहीं होती, इसलिए मैं बोलता हूं। अब मुझे एक बात बता दीजिए, गांधी नेहरू अंबेडकर, why we should put together Gandhi, Nehru and Ambedkar? What is the reason? कि मैं इसलिए नहीं कहना चाहता। एक बात याद रखो, बहुत बार क्या होता है कि गांधी के बारे में अगर बोला गया तो बहुत सारे अंबेडकराइट्स को ऐसा लगता है कि नहीं, गांधी के बारे में कुछ नहीं बोला। एक बात याद रखनी चाहिए, गांधी और अंबेडकर का झगड़ा था, बिल्कुल झगड़ा था, और उसमें गांधी की कितनी गलतियां है ये सब सही बात है, इसमें कुछ दोहरा नहीं है। लेकिन एक बात अपने याद रखनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, गांधी राष्ट्रपिता नहीं थे, गांधी को राष्ट्रपिता किया बाबा साहब अम्बेडकर। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर गांधी को मिले नहीं, तब तक गांधी को राष्ट्र क्या है ये पता ही नहीं चला था। जब बाबा साहब अम्बेडकर मिले, बाबा साहब मिलने के बाद गांधी जी को पता चला कि इसका वास्तव क्या है। जब गांधी, जैसे मैंने जिक्र किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक में 1920 में बाबा साहब ने लिखा था कि मिस्टर गांधी, अफ्रीका में आप जब रहते थे और अफ्रीका में किसी होटल में किसी को प्रवेश नहीं मिला तो आपको तकलीफ होती है, यहाँ मेरे लोगों को पानी पीने की भी यहाँ ये नहीं है, आजादी नहीं है, और आपको कुछ नहीं लगता। तो फिर गांधी को पता चला और फिर गांधी जी ने ये प्रतिज्ञा की। अपने एक ध्यान में रखना चाहिए, एक बात याद में रखना चाहिए, गांधी जी ने प्रतिज्ञा की उस वक्त कि मैं किसी भी ऐसी शादी को नहीं जाऊंगा जो इंटरकास्ट शादी नहीं है, अंतरजातीय शादी को ही मैं जाऊंगा। और उस शादी में एक जो है वो हरिजन बोलते थे, उस शब्द मुझे मंजूर नहीं है, फिर भी एक हरिजन उसमें होना चाहिए, ऐसी ही शादी को मैं जाऊंगा, बाकी शादी को मैं नहीं जाऊंगा। ये जो बदलाव है गांधी जी में, वो कैसा हुआ? अंबेडकर की वजह से। जैसे मैंने बताया कि नेहरू जी को तो जाति वास्तव का पता ही नहीं था, ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत कुछ बोलते थे, बहुत कुछ लिखते थे, लेकिन जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू की तभी पूरी हुई जब उन्हें अंबेडकर ने, तो गांधी को राष्ट्रपिता बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी सही बात है कि गांधी और नेहरू ने मिलकर ही बाबा साहब को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ये मंजूर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में गांधी थे, नेहरू थे, और गांधी नेहरू के साथ अंबेडकर जुड़ गए, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग इस ढंग से हो सका। सो नेहरू अगर मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट है तो मुझे लगता है कि गांधी जी राष्ट्रपिता है, तो अंबेडकर ये सही ढंग से ऐसे है कि जिन्होंने इन लोगों को एक दायरा दिया, एक पर्सपेक्टिव दिया, और इस कारण भारत की राजनीति पूरी की पूरी बदल गई। लेकिन उस वक्त ये सब क्या कर रहे थे? हिंदू महासभा और आरएसएस, वो भी थे उस वक्त। आप मुझे बताएं, एक 1927 में जब बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया, तब तक आप मुकनायक के जो पुराने इश्यूज है, आप देखो पुराने इश्यूज क्या है।
वो पुराने इश्यूज आप देखो मूक नायक के, मेरे पास आज भी है, मैं पढ़ता हूँ मूक नायक ने बाबा साहेब ने उस वक्त क्या लिखा था। मूक नायक ने बाबा साहेब जब मूक नायक निकाला तो मूक नायक पर वहां एक लाइन थी जो ब्रीद वाक्य था, जिसे ब्रीद वाक्य कहते हैं, वो ब्रीद वाक्य था। वो ब्रीद वाक्य क्या था? काय करू आता धरून या भीड निशंक हे तोंड वाजवले। काय करू आता धरून या भीड निशंक हे तोंड वाजवले, ये संत तुकाराम का अभंग है। ये तुकाराम का अभंग बाबा साहब ने कोट किया था, क्योंकि बाबा साहब मानते थे, बाबा साहब बोल रहे थे कि हिंदू रिफॉर्म का मुद्दा है, और हिंदू रिफॉर्म में जो अनटचेबिलिटी है उसकी वजह हिंदू धर्म जो है वो पीछे जा रहा है। तो हिंदू धर्म जो है, तो हिंदू धर्म को आगे आने के लिए जो स्पृश्य बांधव है उन्होंने आगे आना चाहिए, और उन्होंने मिलकर अस्पृश्यता के खिलाफ काम करना चाहिए। बाबा साहब ने वहां लिखा है, उस वक्त लिखा है मूक नायक में, कि जो मेरा ब्राह्मणों के साथ मेरा कोई शत्रुत्व नहीं है, मेरा शत्रुत्व ब्राह्मण्य के साथ है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण्यग्रस्त है, तो ऐसे ब्राह्मण्यग्रस्त और ब्राह्मण भी मेरे दुश्मन है, और ब्राह्मण्य का त्याग करने वाले समतावादी जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो मेरे मित्र हैं। तो इन लोगों ने मिलकर हमें हिंदू धर्म के लिए काम करना चाहिए, बाबा साहब ने कहा। लेकिन कहने के बाद भी कुछ माने, तो 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया और ये कहा कि अगर हिंदू धर्म का रवैया यही रहा, हिंदू धर्म का रवैया यही रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अस्पृश्य बांधव को, हमारे अस्पृश्य बंधु भगिनी सब जो लोग हैं, उनको बाहर आना पड़ेगा हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म त्यागना पड़ेगा। ये 1927 में बाबा साहब ने लिखा था। 1927 में बाबा साहब ने लिखा था। हिंदू महासभा जो है उसकी स्थापना 1915 को हो गई, आरएसएस की स्थापना 1925 को हो गई। बाबा साहब बोल रहे थे कि अगर हिंदू धर्म में रिफॉर्म नहीं हुए तो हमें हिंदू धर्म त्यागना होगा, क्योंकि ये हिंदू धर्म हिंदू नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण्यग्रस्त धर्म है, और ये त्यागना होगा, हमें छोड़ना होगा। तो ये सब लोग क्या कर रहे थे, जो आज बाबा साहब का गुणगान कर रहे हैं, वो उस वक्त क्या कर रहे थे? 1927 में बाबा साहब ने कहा हिंदू धर्म त्यागना होगा। उसके बाद 8 साल बाद येवला में बाबा साहब ने ओपनली कहा कि मैं हिंदू म्हणून जन्माला आलो, पण हिंदू म्हणून मरणार नाही, मुझे हिंदू धर्म छोड़ना होगा, बाबा साहब ने कहा। उसके बाद 21 साल बाद बाबा साहब ने नागपुर में, जो दीक्षा भूमि, नागपुर में जो संघ की भूमि है, आरएसएस की भूमि है, वहां हिंदू धर्म छोड़ा। तब तक ये सब लोग क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बाबा साहब को समझने के लिए ये सब उनका जो, वो किस ढंग से विचार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि शाहू फुले अंबेडकर जो हम कहते हैं, वैसा शोभा ज्योतिबा बाबा, ये हमें इकट्ठा लेना पड़ेगा। दूसरा, गांधी नेहरू अंबेडकर के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आज की राजनीति की ये जरूरत है। गांधी नेहरू अंबेडकर, जैसे मैंने कहा कि गांधी को राष्ट्रपिता बनाया बाबा साहब ने, लेकिन बाबा साहब को आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो गांधी, क्योंकि वो मिलकर आए थे। ये सही है, वो बाबा साहब अंबेडकर का पक्ष अलग था, गांधी का पक्ष और नेहरू का पक्ष अलग था, तो ये अपोनेंट थे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, एक दूसरे को गिराना, ये सब होगा। लेकिन आइडियोलॉजिकली तीनों में भी एक वाक्यता थी, स्वातंत्र, समता, बंधुता, धर्मनिरपेक्षता। इन मूल्यों के आधार पर वो तीनों भी इकट्ठे थे। ये हमने तय करना चाहिए, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए, और गांधी नेहरू अंबेडकर को इकट्ठा लेकर आज हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि आज का समय बहुत कठिन। आपको पता है आज बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने ये कहा था, नो 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 नो, किसी ने लिखा है आरएसएस के बारे में कुछ नहीं था, मैं इसलिए कह रहा हूं। बाबा साहब ने नागपुर में क्या, इसका संघ भूमि से कुछ संबंध नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग बाबा साहब को आज उनका अपहरण करना चाहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि बाबा साहब ने इस सब के खिलाफ आंदोलन किया था, और जब हिंदू धर्म त्यागा तब तक ये लोग क्या कर रहे थे, जो बाबा साहब को आज अपना मानते हैं। इसके बारे में मैं कह रहा हूँ। दीक्षा ली नागपुर में, इसका संघ के साथ साथ कुछ संबंध नहीं था। किसी ने मैसेज दिया है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उसका कोई संबंध नहीं था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हमें कहना है, इसका मतलब ये भी है कि बाबा साहब का आंदोलन कांग्रेस के भी खिलाफ था। कांग्रेस ने क्या किया ये हमें पता है, आरएसएस ने क्या किया ये भी हमें पता है। फिर भी अगर आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकली अगर हमें आगे जाना है, तो हमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर ये तीनों को जोड़कर एक नई पॉलिटिकल लाइन विकसित करनी चाहिए। ये मेरा कहना ये है। आज क्या है,
आज लोकशाही के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर का एक पुणे में भाषण हुआ, स्पीच हुआ, लोकशाही की व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी पर बाबा साहब का एक बहुत अच्छा स्पीच, एक्चुअली वो स्पीच में आ नहीं सके, उन्होंने वो स्पीच लिख कर भेजा था। चांगदेव खैरमोड़ी जी का जो संच है उसमें एक 12वां ये है, उसमें यही वो जो स्पीच है वो पूरा स्पीच दिया है। बाबा साहब क्या कहते हैं, लोकशाही के लिए क्या क्या जरूरी है, व्हाट इज प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, लोकशाही के लिए जरूरी बातें क्या है। तो बाबा साहब पहले ये कहते हैं कि लोकशाही के लिए समता, इक्वालिटी, ये सबसे जरूरी बात। बाबा साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को ये देश प्रजासत्ताक हो गया, लेकिन अब क्या होगा कि वी आर एंटरिंग इन द एरा ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। एक अंतर्विरोध जो है, ये अंतर्विरोध पर हम जा रहे हैं, अंतर्विरोध पूर्ण दुनिया में हम जा रहे हैं। ये अंतर्विरोध क्या है? अंतर्विरोध ये है कि इन पॉलिटिकल लाइफ देयर इज इक्वालिटी, वन पर्सन वन वोट, देयर इज इक्वालिटी, बट इन सोशल लाइफ देयर इज नॉट इक्वालिटी। अगर सामाजिक जीवन में विषमता है तो ये सामाजिक जीवन की विषमता राजकीय समता को भी उद्ध्वस्त कर देगी, ऐसा बाबा साहब ने कहा। आज हमें देख रहे हैं कि सामाजिक विषमता के कारण हमारी राजकीय समता भी ध्वस्त हो रही है। हमारे सिस्टम क्या हो रही है, हमारे इलेक्शन कमीशन हो, हमारे ज्युडिशरी हो। बाबा साहेब ने कहा था, राज्यघटना शेवटी काय देईल, कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, न्याय मंडळ असे अवयव देईल, पण त्या राज्यघटनेमध्ये प्राण फुंकतील आम्ही भारताचे लोक, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाबा साहब का एक कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत महत्वपूर्ण भी है, लेकिन उसका बेस है वी द पीपल, कॉमन मैन इज इसेंस। सो जो आम आदमी है वो आम आदमी ये ओनर है इस सब कॉन्स्टिट्यूशन का, और इस ये जो बाबा साहब कह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समझना चाहिए। और एक बात है, बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब ने जब संविधान सभा में उनका स्पीच था, तो उनके स्पीच में उन्होंने कहा था, वॉल्टेयर को उन्होंने कोट किया और बोला कि अगर आपने मेरे खिलाफ कुछ कहा तो आपका जो कहना है वो कहना गलत है, ये साबित करने के लिए मैं बिल्कुल मेरे बुद्धि से काम करूंगा, लेकिन मेरे खिलाफ का जो आप कह रहे हैं वो कहने का आपका हक बरकरार रहे, इसके लिए मैं जिंदगी भर काम। आज क्या है, आज कोई अपोजिशन, कोई बाकी आवाज होनी नहीं चाहिए, ऐसी जब स्थिति पैदा हो गई है, ऐसी स्थिति में हमें बाबा साहब समझना होगा। और बाबा साहब समझने के लिए बेसिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो समझ, मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात तो ऐसी है कि तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महापुरुष मुझे लगता नहीं कि किसी देश के पास होगा। मैं he was amazing person, he was amazing person, but you just take any discipline and he was master in that। बाबा साहब में क्या नहीं था मुझे बता दी, मतलब एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, आर्ट, बाबा साहब ने सब कुछ पढ़ा था, और सब कुछ पढ़कर भी बाबा साहब ने ये बता था ये सब है, लेकिन अंततः जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आम आदमी के लिए है और आम आदमी ही इसका मालिक है। और उन्होंने कहा था कि आगे समय ऐसा आएगा, मैंने जैसे कहा कि पहले लोकशाही के लिए उन्होंने क्या बोला, समता जरूरी है। दूसरा है कि सर्वसामान्य मानुष जो है, सर्वसामान्य आदमी जो है, वो आम आदमी जो है, वो आम आदमी इसका ओनर है, ये भी हमें पता चलना, ये भी लोकशाही के लिए जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि समय ऐसा आ सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज will change their mind, they will go away from basic doctrine of democracy। ये हो सकता है। मीडिया बिका जा सकता है, जैसे कि हम आज देख रहे हैं, जो बाबा साहब ने उसी वक्त कहा। इंडस्ट्रियलिस्ट तो अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, ये सब होगा भी, फिर भी भारत आगे जाएगा, हमारी डेमोक्रेसी आगे जाएगी, क्योंकि द ओनली रीजन इज वी द पीपल। यहाँ का जो आम आदमी है, यहाँ का जो कॉमन मैन है, उसमें ये हिम्मत है, उसमें एक क्षमता है कि ये इस देश को आगे ले जा सकता है। इसलिए कोई भी देश में जो बेसिक ओनरशिप है, वो ओनरशिप कॉमन मैन के पास होनी चाहिए। इस पर बाबा साहब काम, मुझे लगता है कि महात्मा फुले हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, ये दोनों को जब हम देखते हैं, तो दोनों को जो काम था, इसमें काम क्या किया। और आप एक बात देख,
ध्यान रखना चाहिए, जो आज जो लोकशाही के सामने जो भी प्रॉब्लम्स है, खास करके पोस्ट कोरोना, जैसे लगता है कि कोरोना के बाद सबसे प्रॉब्लम क्या हो, कोरोना के बाद सबसे 2 प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एक पहला प्रॉब्लम ये है कि सोशल जस्टिस की जो लड़ाई है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सामाजिक न्याय का जो मुद्दा है, वो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा मुद्दा जो है, वो ये है कि एक्टिविज्म और लड़ाई, आंदोलन, ये जो है, ये करना, मूवमेंट जो है, वो बड़ी मुश्किल में आ जाएगी। पोस्ट कोरोना डिजिटलाइजेशन होगा, पोस्ट कोरोना जो भी कुछ होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माहौल होगा, लेकिन इसमें एक्टिविज्म का, इसमें सोशल जस्टिस का क्या होगा, इसके बारे में हमें सोचना है, इस पर काम करना। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज औरंगाबाद में हूँ। औरंगाबाद में यहाँ करमाड़ करके एक गाँव है। इस गाँव के पास कोरोना के वक़्त जब माइग्रेंट्स मज़दूर जा रहे हैं, तो कुछ माइग्रेंट्स मज़दूर रेलवे ट्रैक पर मृत्युमुखी, उन पर रेलवे चली गई और बेचारे वो मर गए। तो मेरे पास वो फ़ोटो आ गई। 16 मज़दूर थे। 16 मज़दूर थे और वो मज़दूर बिल्कुल रेलवे ट्रैक पर, उनके जो मृतदेह है, वो मृतदेह पड़े हुए थे और उनके पास में उनका डिब्बा, भाकरी पड़ी हुई थी। ये फ़ोटो मेरे पास आ गई। संपादक के लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है। ये फ़ोटो देखकर मुझे लगा कि ये फ़ोटो नहीं छपनी चाहिए। फिर मुझे लगा कि यार, जो है सो है। वो हम डिनाय नहीं कर सकते, वास्तव है। तो वास्तव से हम दूर नहीं जा सकते। तो मैं सोचा कि नहीं, ठीक है, ये हम पब्लिश करें। तो हमने वो फ़ोटो पब्लिश कर दी और फ़ोटो पब्लिश करने के बाद वहाँ मैंने कैप्शन लिखी। कैप्शन मराठी में, कैप्शन ऐसी थी, अजंठा वेरूळच्या परिसरात उद्या जेव्हा उत्खनन होईल, अजंठा वेरूळच्या परिसरात उद्या जेव्हा उत्खनन होईल, तेव्हा सापडतील आक्रसलेली प्रेतं आणि त्यांच्या शेजारी निवर्तलेली भाकरी. तेव्हा विकास हीच त्या काळातली सगळ्यात मोठी फेक न्यूज होती, असा निष्कर्ष उद्याच्या पिढ्या काढतील. एवढं झालं, इतना होने के बाद जब पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ, तो माइग्रेंट लेबर्स कितने मरे, इसके बारे में, माइग्रेंट्स मेरे में कितने गए, इसके बारे में कुछ भी नहीं था। कुछ डेटा नहीं था, कुछ आंकड़ेवारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो डेटा ही नहीं था। मुझे लगता है कि अदरवाइज वी से डेटा इज फ्यूल, डेटा इज पावर। लेकिन जब लोग मरते हैं, तो उनका डेटा नहीं रहता। तो ये जो चीज है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सोशल जस्टिस का मुद्दा जो है, वही मुद्दा आगे जाकर बहुत बड़ा होने वाला है। और हमें इसलिए महात्मा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका स्मरण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि यही वो लोग हैं कि जो इसके बारे में कुछ कह सकते हैं, जो हमें दिशा दर्शन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बेसिकली 2-3 चीजों पर मैं आखिर में गौर करना चाहूंगा। आज डेमोक्रेसी के बारे में क्या हो रहा है, हम देखते हैं। अमेरिका में मुझे लोगों ने बताया कि अमेरिका में जब इलेक्शन हुआ, रिजल्ट अनाउंस हो गए, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो लोग थे, उन्होंने कैपिटॉल पर हमला किया। दे अटैक्ड कैपिटॉल। इट वाज वेरी वायलेंट एक्शन बाय। तो मुझे बताया गया है कि हमारे भी संसद पर ऐसा हल्ला होगा क्या? तो मैंने बोला कि हमारी सबसे बड़ी और बुरी बात हमारे सामने ये है। हमारा बेसिक चैलेंज क्या है हमारे सामने? बेसिक चैलेंज ये है कि हमारे संसद पर संसदीय तरीके से ही हल्ला हो रहा है। हमारे संविधान पर संवैधानिक तरीके से हल्ला हो रहा है। और ये जब हल्ला हो रहा है, तब तब लड़ने के लिए हमें समझना चाहिए डॉक्टर भीमराव रामजी आंबेडकर ने क्या कहा। इसलिए मैंने कहा, मुझे बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा की तुम्ही एखादा मुद्दा मांडलात आणि जर तुम्हाला पटला नाही, तर तुमचा मुद्दा खोडून काढण्यासाठी मी माझी बुद्धी पणाला लावेल, पण तुम्हाला तुमचा मुद्दा मांडता यावा यासाठी जीवाची बाजी लावेल। कि भीमराव रामजी आंबेडकर ने क्या क्यों कहा, किस लिए कहा। और आज क्या हो रहा है? आज जब डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का खून होता है, गोविंद पानसरे का खून होता है, गौरी लंकेश का खून होता है, डॉक्टर कलबुर्गी का खून होता है, किस लिए होता है? क्योंकि वो ऐसा कुछ कहते हैं जो सिस्टम को पसंद नहीं है। जो हमें पसंद नहीं है, वो आपने बोलना ही नहीं है। महाराष्ट्र में साहित्य सम्मेलन होता है हर साल। नयनतारा सहगल करके एक लेडी है,
नयनतारा सहगल, तो नयनतारा सहगल वो सी इज 82 और वो इनॉग्रेशन के लिए आने वाली थी, लेकिन नयनतारा सहगल ऐसा कुछ बोलती है जो सिस्टम को और गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, इसलिए उसे आने से रोका गया। 82 साल की लेडी का भय क्यों लगा? इसलिए लगा क्योंकि वो कुछ अलग कहती है। तो हमें पसंद नहीं है वो कोई कहेगा, इसका डर लगता है। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अरे सभी का खून मेरा है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। ये सबका देश है, आम आदमी इसका ओनर है। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए और मुझे लगता है कि अब लड़ाई लड़ने के लिए मुझे एक आखिरी मुद्दा मुझे ये आपको आपके सामने रखना है। इंटरनेशनल मिशन में ये इस पर आपने काम करना चाहिए। हम ये कर रहे हैं कि हम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को अकेला लेकर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी हमारी बिरादरी है वो बिरादरी व्यापक करनी है, वो बिरादरी बड़ी करनी है। इसलिए शिवबा ज्योतिबा बाबा ये तीनों को मिलाकर हमें ये बिरादरी बड़ी करनी है और पॉलिटिकली भी हमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर ये तीनों को मिलाकर हमारी बिरादरी और बड़ी करनी है, कैनवास बड़ा करना है, क्योंकि आज का टास्क, आज का चैलेंज बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बड़ा चैलेंज। वी आर फेसिंग डिफरेंट चैलेंज और ऐसा चैलेंज है, उस चैलेंज के साथ लड़ने के लिए, इस पर मात करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मुझे लगता है कि हमें हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा अप्रोच थोड़ा और वाइड करना चाहिए, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए और इसके साथ अगर हम गए, मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भी लिखा है, उनके जो शब्द है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उन्होंने जो भी कुछ कहा है इस सब बारे में, तो ये हमारे लिए दिशा दर्शक है, मार्गदर्शक है। हम आगे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने थोड़ा-सा थोड़ा-सा आगे जाकर बात करनी चाहिए कि थोड़ा-सा जो हम जैसे मैंने बोला कि पर्सपेक्टिव, वी शुड चेंज आवर पर्सपेक्टिव। हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो हमने बड़ा करना चाहिए। ये अगर हमने किया तो आई एम होपफुल, डेफिनिटली हम होंगे कामयाब और हम होंगे कामयाब ये कहने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। बेसिकली जैसा कि एज डॉक्टर अनिल बनकर टोल्ड, my relative has hospitalized in ICU due to corona, so it was really difficult for me to join today's session, but so also I have decided कि just I'll be there। मुझे यहाँ इसलिए आना था कि मुझे सिर्फ यही कहना था कि मैं आपके साथ हूँ। कभी और मौके आएंगे जब मैं पूरा विस्तार से मेरी बातें जो है रखूंगा। आई विल पुट वेरी इन डिटेल, लेकिन आज मुझे सिर्फ यही कहना था कि जो बिरादरी है हमारी, वो बिरादरी विश्वव्यापी होनी चाहिए और विश्वव्यापी होने के साथ और बड़ी करनी चाहिए हमें, और हमारा पर्सपेक्टिव जो है, अप्रोच है, वो और वाइडर करना चाहिए। इसने कहा है कि आपके बारे में बताओ, तो मैं संजय आवटे हूँ। मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ। आई एम एडिटर इन चीफ ऑफ दिव्य मराठी। आप लोग जानते होंगे कि देयर इज भास्कर ग्रुप इन इंडिया व्हिच इज नंबर 1 ग्रुप इन इंडिया। मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर इज भास्कर, so it is number 1 newspaper in India and number 3rd newspaper in the world। दुनिया में तीसरा न्यूज़पेपर है ये, तीसरे नंबर पर न्यूज़पेपर है भास्कर। भास्कर का मराठी अखबार है दिव्य मराठी। so I am heading दिव्य मराठी, I am स्टेट एडिटर। राज्य का मैं मुख्य संपादक हूँ दिव्य मराठी अखबार का। उसके पहले मैं साम टीवी का भी संपादक था, मैं मुंबई सकाल का संपादक था, मैं लोकसत्ता का भी संपादक था। पुणे में बैठा था तब मैं लोकमत का, डिजिटल लोकमत का भी मैं स्टेट का एडिटर था। तो मैं बेसिकली आई एम ए जर्नलिस्ट, आई एम राइटर, जैसा कि एज डॉक्टर अनिल परिकर टोल्ड, आई हैव पेन्ड 10 books in Marathi। Recently I have written one book, Game of Thrones, which is in Marathi, Game of Thrones, which is about assembly elections in Maharashtra। जैसे कि आपको पता है कि it was historical election in Maharashtra, so I have written about that assembly election, Game of Thrones। and उसके पहले बी द चेंज आम्ही भारताचे लोग, ये मेरी किताब है। वो किताब अब हिंदी में भी आ गई है, हम भारत के लोग। तो ये भी एक किताब भी मैंने लिखी है। मुझे लगता है कि मेरा इतना इंट्रोडक्शन काफी है। मैं अब पॉलिटिकल साइंस में मैंने एमए भी किया है, मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया है और मेरा पीएचडी अब खत्म होने वाला है। तो इस 3-4 महीने में मुझे पीएचडी भी अवार्ड होगा। तो मुझे लगता है कि मैं एकेडमिक्स, जर्नलिज्म, राइटिंग, ये मेरे सब 4 एरियाज है। और बेसिकली जहाँ-जहाँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर पर बोलने की जरूरत होती है, कि मुझे लगता है, मुझे तो मैं जाता ही हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बातें रखनी चाहिए, लोगों तक पहुंचाने चाहिए। लेकिन हमें एक करना है, एक आखिरी मुद्दा मैं रखता हूँ, हमें क्या करना चाहिए? हमें नए जनरेशन को नए जनरेशन की भाषा में बोलना चाहिए। होता क्या है कि हम भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को भी अपील ही नहीं होता, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत पुरानी हो गई। तो मुझे लगता है कि इस जनरेशन की भाषा में
हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बोलना होगा। मैंने बराक ओबामा पर किताब लिखी, बराक ओबामा बदलता जगह सक्सेस पास। तो मुझे लोगों ने बताया कि बराक ओबामा के बारे में आपने किताब क्यों लिखी? तो मैंने बोला कि मुझे बराक ओबामा पर लिखना नहीं था, मुझे लिखना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। लेकिन नई जनरेशन को कुछ नए आइकॉन चाहिए। तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की मूल्य व्यवस्था बराक ओबामा का उदाहरण देकर लोगों को समझा। क्योंकि बराक ओबामा मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के ही रास्ते पर चलने वाला आदमी है। बराक ओबामा जब भारत में आए थे और उनसे मीडिया ने पूछा, यू आर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू मेड हिस्ट्री, सो हाउ कुड यू मेक हिस्ट्री, व्हाट इज द सीक्रेट दैट यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स? उस वक्त ओबामा ने कहा कि probably for US it is amazing thing, but for India it is not amazing thing because भारत ने ये चमत्कार पहले ही किया है। और तब मीडिया को उन्होंने बताया कि डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने ये चमत्कार कई साल पहले भारत में किया है और उसके बाद ये अमेरिका में हो रहा है, ये बराक ओबामा ने कहा। तो उसके बाद मैंने बराक ओबामा पर किताब लिखी यही समझाने के लिए। तो मुझे लगता है कि नई जनरेशन के साथ, क्योंकि आप ये जो तुम्हारी अपोनेंट आइडियोलॉजी है, उनका ये रवैया है कि कैच देम यंग। जो नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, उनकी भाषा में वो समझाते हैं और उनको भी ऐसा लगता है कि अरे यही सही है। तो मुझे लगता है सही क्या है, झूठ क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने बाबा साहब का अपहरण किया है, गांधी का भी अपहरण किया है और नेहरू जी का तो ट्रोलिंग शुरू ही होता है। तो ये सब किसी का ट्रोलिंग, किसी का अपहरण, ये सब शुरू होता है। इस युग में हम रह रहे हैं, इस एरा में हम रह रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे महापुरुष, हमारे महामानव सही ढंग से लेकिन नई भाषा में हमारे नए जनरेशन तक हमने पहुंचाना चाहिए। अगर किया तो मुझे लगता है यार, हम तो, हमारे पास बाबा साहब की लेगेसी है, इतनी बड़ी लेगेसी है। लेकिन एक बात याद रखो कि जब हम सूरज की लेगेसी बताते हैं, सूरज की लेगेसी बताते हैं, तो कभी कभी भस्मसात भी होना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता ये लेगेसी बताना। तो मुझे लगता है बाबा साहब का नाम लेना इतना आसान नहीं है। नाम लेते वक्त जो जिम्मेदारी आती है, वो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। मुझे लगता है ये जिम्मेदारी अगर हम निभाए तो डेफिनेटली वी कुड गो अहेड, हम आगे जा सकते हैं। सबको धन्यवाद। और कभी भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं मेरा जो कहना है, जैसे कि मैंने कहा कि अम्बेडकर प्लस गांधी प्लस नेहरू इज इक्वल टू इंडिया, इस पर मैं बोलता भी हूँ, इस पर मेरी किताब भी है। ये सब मेरा जो भी कुछ कहना है, मैं विस्तार से कभी पूरा रख पाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय भीम। थँक यू सो मच सर. इट वॉज व्हेरी इलेक्ट्रिफाइंग स्पीच. जसं आपण एखाद्या सिस्टमला रिसेट करतो, तसंच आता जे काही पार्टिसिपंट्स आहेत त्या सगळ्यांना असं एक रिसेट झाल्यासारखं वाटलं. आणि यू आर राईटली सेड, वी विल वर्क ऑन युअर फॉर्म्युला. शुभा, ज्योतिबा आणि बाबा, just to give introduction about the Ambedkar International Mission. आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशनचं पे बॅक टू सोसायटीवर काम करतं आणि इथले युए मध्ये असेल, युएस मध्ये असेल, युके मध्ये असेल, तिथे फुले शाहू आंबेडकरी विचारधारा कशी पोहोचेल. आम्ही इथे शिवजयंती साजरी करतो, फुले जयंती साजरी करतो, ज्याही महापुरुषांच्या जयंत्या त्या सगळ्या साजऱ्या केल्या जातात. याच्या व्यतिरिक्त वी विल डोनेट द बुक्स, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्पीचेस आणि व्हॉल्युमचे बुक्स इथल्या ज्या काही युनिव्हर्सिटीज आहेत त्या युनिव्हर्सिटीला डोनेट करतो. अँड वी आर डुईंग. आणि तुमच्यासारखे जर गायडन्स जर आम्हाला मिळालं तर ये कारवा हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं. पुढच्या भविष्य काळात काही अभ्यास वर्ग आपण यंग जनरेशनसाठी स्पेशली करूया. आणि तुम्ही राईटली सेड, सबका खून समाये इस मिट्टी में, किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है. सो थँक यू सो मच सर. आणि क्रांतिकारी जय भीम. ओव्हर टू यू पंकज जी.